Hello everyone, welcome to weekly session on reading comprehension. आज का जो ये सेशन है, मैंने जैसा आपको लास्ट क्लास में बताया था, I'll take an editorial from newspaper and उस एडिटोरियल के थ्रू हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. आई एम नॉट टेकिंग अप एनी न्यू टॉपिक एज ऑफ नाउ. जितने हमने पीछे टॉपिक्स किए हुए हैं कि कैसे हम लोग की आइडियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्कोप को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, मैंने उन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन फ्रेम किया है. सो लेट्स बिगिन. अब आप देखें तो आपके सामने एक सोशल इश्यू के ऊपर एक पैसेज दिया हुआ है. ये पैसेज जो है विप्रो के जो प्रेजेंट चेयरमैन है उन्होंने ये लिखा हुआ है. सो लुक एट द काइंड ऑफ लैंग्वेज दिस मैन हैज यूज्ड. As a chairman of Wipro and having engaged with the work of Azim Premji Foundation, I have closely seen very different views of the world. So, did you notice one thing? यहाँ पे ये जो भी बातें कही हुई है एक पर्सन के पर्सनल व्यूज हैं. So, पैसेज का जो स्टाइल है वो स्टाइल कैसा है? देखो, टोन की बात करें, टोन इज डिफरेंट देन स्टाइल. स्टाइल जो है मैं इसको नैरेटिव की कैटेगरी में रखना चाहूंगा. So, ये पैसेज जो है वो नैरेटिव है where a person is using his or her own experiences to argue something. So, एक बार पढ़ते हैं. As a chairman of Wipro and having engaged with the work of Azim Premji Foundation, I have closely seen very different views of the world, of the huge success technology has brought to our lives and the huge deprivation and inequity that still exists all around us. तो क्या बोल रहा है कि मैंने देखा है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर अलग अलग व्यू है. Even before the pandemic, the median household income in India was 15,000 per month. That means a family of 4 at the median income level lived on just 125 rupees a day. And that was per person basis. For all their expenditure on food, clothing, housing, healthcare, festivals, and more. One health emergency and a family is crushed. तो देखा आपने जो व्यूज हैं वो कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, मतलब अप्रिसिएशन की साइड पे तो लग नहीं रहे हैं. आगे बोल रहा है फॉर द बॉटम 10% these numbers are even more gut wrenching. तो मैं यहां से इमेजिन कर सकता हूं कि जो ऊपर वाला डेटा भी है वो कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं है. ही इज हाईलाइटिंग some negative aspects. These numbers don't account for even for the economic devastation that the pandemic has caused and don't capture stark inequities and injustices across gender, caste, regions and more. To make progress. So यहां से लेकर यहां तक ऑथर ने प्रॉब्लम डिस्कस की एंड आगे फिर सॉल्यूशन दे रहा है. To make progress on these inequities, I propose we add the Human Development Product, which is the HDP, to the GDP. I believe deeply that you achieve what you measure. So अगर हम लोग HDP को इंक्लूड करेंगे GDP के साथ तो हम लोग उसको मेजर करेंगे, हम लोग उसको मेजर करेंगे तो डेफिनेटली उसको अचीव करेंगे. However, at times I believe deeply that you achieve what you measure. However, at times you must dig deeper to the next level of measures to truly understand the real health of the situation you are assessing. ठीक है. I propose that the HDP consists of the following 5 parameters. First, the female labor force participation rate. Second, the gender income parity. A comparison of both the median and the 75th percentile of wages of men and women. ठीक है. Stunting, a reflection of state of our public health, the nutritional status of our people and environmental conditions. Fourth, water quality and availability. Fifth, the quality of polity. So ये 5 चीजें जो है वहां पे वो ऐड करनी चाहिए. Natural debate that follows is why only 5 measures and why only these 5 measures. फिर उसका जवाब दिया कि they are the vital few which I believe will measure the progress of most fundamental things in our country and reflect human progress. What I'm arguing for is a measure of true human progress, which, if left behind, will negate all the progress we make in our GDP. तो इस तरीके से एक प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम के बाद उसके सॉल्यूशंस बताए एंड सॉल्यूशंस में वही वाले सॉल्यूशंस क्यों ये बताया. So I hope overall पैसेज आपको समझ में आ गया होगा. Now key ideas कि इस पूरे पैसेज को समराइज कैसे करें. There is a lot of information to be read. उसको छोटा करना है because we need to identify the main idea as well. So एक काम करते हैं, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे की आइडियाज रखे हुए हैं. मैंने पहले तो इसको अलग अलग एरियाज में रख दिया. So I've highlighted different areas with different colors and अब मैं इसके की आइडियाज देखता हूँ. तो देखो पहले तो यही बोल रहा है देयर आर डिफरेंट व्यूज
यही तो बोल रहा है, देयर आर डिफरेंट व्यूज ऑन टेक्नोलॉजी कि some people believe it has brought success, some people believe it has brought injustice, inequalities, और वो injustice और inequalities को बताने के लिए I guess author ने वो example use किया था कि even before pandemic median income per person was very low. It was just 125 per person, I guess. So वही कह रहा है even before the pandemic wreaked havoc, median income per person was very low. Next क्या बोल रहा है? Next बोल रहा है data of people living at the lowest level in the social hierarchy is not even considered. तो यही तो कह रहा है कि median income is very very low, and if you look at the bottom 10%, the number is even more gut wrenching. They don't even account for the economic devastation. तो कुल मिला के बात यही हो रही है कि data of people living at the lowest level in the social hierarchy is not even considered while calculating the impact of the pandemic. Inequalities and injustices abound. बहुत सारी है वहां पे, ठीक है. नेक्स्ट अगर देखें तो ये क्या बोल रहा है? To address the problem, we should add HDP to the GDP in our assessment, and the HDP should consist of 5 vital parameters. Next, the HDP is the measure of true human progress which can't be ignored. तो ये जो 4 की आइडियाज हैं, ये पूरे पैसेज में दी हुई इंफॉर्मेशन को समराइज कर रहे हैं. तो मेन आइडिया क्या हो सकता है? नाउ यू डोंट नीड दिस पैसेज. इस पैसेज की तो आपको जरूरत ही नहीं है. यू ओनली लुक एट दीज की आइडियाज एंड यहां से बताओ कि क्या मेन आइडिया होना चाहिए. देखो टेक्नोलॉजी के ऊपर अलग अलग व्यूज हैं. पैंडेमिक से पहले भी मीडियन इनकम बहुत कम थी, सो वी कैन नॉट जस्ट ब्लेम पैंडेमिक. डेटा ऑफ पीपल लिविंग एट द लोएस्ट लेवल इज नॉट इवन कंसिडर्ड while calculating the impact of the pandemic. इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने, and there are a lot of injustices and inequalities at the lowest levels of the society. To address this problem, we need to add HDP to the GDP. फिर आगे बोल रहा है HDP is a measure of true human progress which can't be ignored. So देखो अब मेन आइडिया की अगर बात करते हैं, ये रहा वो 4 पॉइंट्स मैंने जो लिखे थे, उसी से ही मेन आइडिया डिराइव किया. एडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट टू द जीडीपी कैन बेटर हेल्प आइडेंटिफाई एंड रिमूव इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिसेस. प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यही तो थी कि सोसाइटी के लोएस्ट लेवल्स पे बहुत सारे इनइक्वालिटीज, इनजस्टिसेस है. इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए वी नीड टू ऐड एचडीपी टू द जीडीपी. तो देखो, एडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोडक्ट टू द जीडीपी कैन बेटर हेल्प आइडेंटिफाई एंड रिमूव इनइक्वालिटीज एंड इनजस्टिसेस. Pretty simple, right? You can do this practice with all the editorials that you get on daily basis. Next देखते हैं. अच्छा, अब क्योंकि आपको पूरा पैसेज समझ में आ गया, तो मैंने आपको बताया था when you write key ideas, you don't need to look into the passage one more time. आपको सारी चीजें यहाँ पे फिट रहती है. So ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या, मैंने मतलब एक एडिटोरियल लिया है, उस एडिटोरियल को अपने हिसाब से मोल्ड किया, मैंने सारे आंसर्स आइडेंटिफाई किए हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे रखे. अब देखो यहाँ पे मैंने ना कुछ इन्फ्रेंसेस लिए और आप बड़े आराम से इन इन्फ्रेंसेस को भी ये सारी इंफॉर्मेशन को भी इन्फर कर पाओगे. मीडियन इनकम, हाउस होल्ड इनकम ऑफ ₹15,000 इज अनडिजायरेबल. डेफिनेटली उसने उसको इसी तरीके से तो प्रेजेंट किया कि पैंडेमिक से पहले भी एवरेज मीडियन हाउस होल्ड इनकम कितना था? 15,000 per month था. That means a family of 4 would survive at 125 per person per day. ठीक है. So 15,000 जो है, डेफिनेटली ये जो अमाउंट है 15,000 का, ये अनडिजायरेबल है. वी कैन इन्फर इट फ्रॉम द पैसेज. अच्छा, सेकेंड इन्फरेंस देखो, प्रेजेंट मेजर्स डू नॉट करेक्टली एड्रेस द प्रॉब्लम्स impending progress in society. impeding progress in society. So आप अगर देखें तो ये जो प्रेजेंट मेजर्स हैं ये वर्क नहीं कर रहे, तभी तो मैं HDP को GDP में ऐड कर रहा हूं. यू कैन वेरी वेल टेक दिस इन्फ्रेंस. मैंने इन्फ्रेंस यहां से बस लिया था. एंड ये सारी चीजें जो है ये कंसिस्टेंट है ऑथर के आर्ग्यूमेंट से. नेक्स्ट देखते हैं. अ सिचुएशन वेयर गैप बिटवीन इनकम्स ऑफ मेन एंड वुमेन इज मिनिमम इज डिजायरेबल. अब अगर आप देखें तो यहाँ पे डिस्पैरिटी की बात की हुई थी. डिस्पैरिटी की बात जो यहाँ पे की हुई है, ये अक्रॉस जेंडर है. ये देखो, stark inequities and injustices across gender. So ऐसी सिचुएशन जहां पे इनकम गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन कम हो, वही तो डिजायरेबल है, क्योंकि ज्यादा होगा
तो ही तो प्रॉब्लमैटिक है, जो प्रॉब्लम अभी है। तो अगेन दिस कैन बी एन इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट, इफ आई लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। अब देखो ये पैसेज में जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप देखो कि पहले आपको क्या दे रखा है, फिर आपको ऑथर ने क्या कह रखा है, लास्ट में आपको ऑथर ने क्या कह रखा है। तो पहले इफ यू लुक एट द फर्स्ट हाफ ऑफ द पैसेज, वहां पे दो चीजें हैं। पहला, ऑथर ने एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रखी है कि जो लोएस्ट लेवल पे जो इनइक्विटीज और इनजस्टिसेस हैं सोसाइटी में, उनको तो एड्रेस भी नहीं किया जाता। तो इसीलिए फिर उसके लिए सोल्यूशन दिया ऑथर ने कि एचडीपी को जीडीपी में ऐड करो, और फिर आगे बताया कि एचडीपी क्यों चूज किया। सो फर्स्ट देयर इज अ प्रॉब्लम, सेकंड देयर इज अ सॉल्यूशन, एंड थर्ड द रीजन बिहाइंड चूजिंग दैट पर्टिकुलर रेमेडी, कि हमने एचडीपी ही क्यों चूज किया। तो यही तो है स्ट्रक्चर। लेट्स लुक एट इट कि मैंने क्या लिखा, एन आर्ग्यूमेंट सजेस्टिंग चेंजेस टू द करंट मॉडल यूज्ड टू अलिविएट सोशल प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट क्यों? बिकॉज ऑथर इज ट्राइंग टू से आर्ग्यू अ पर्टिकुलर पोजीशन, एक पर्टिकुलर पोजीशन को वो आर्ग्यू कर रहा है। सो इट्स एन आर्ग्यूमेंट सजेस्टिंग चेंजेस टू द करंट मॉडल यूज्ड टू अलिविएट सोशल प्रॉब्लम्स। आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, टोन। अब देखो मैंने टोन के लिए क्या किया, मैंने यहां पे आप लोगों के लिए 4 ऑप्शंस रख दिए। आप 1 मिनट के लिए इसको पॉज कीजिए, खुद सोचिए कि क्या होना चाहिए, एंड उसके बाद इस वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा। सो लुक एट इट, ये 4 ऑप्शंस है आपके सामने, थिंक अबाउट इट। इसका टोन कुछ लोगों ने सही गैस किया होगा। The tone is persuading because author is trying to tell you that we should do this thing instead of that thing. हम लोगों को केवल जीडीपी को मेजर नहीं करना चाहिए, जीडीपी के साथ एचडीपी को भी मेजर करना चाहिए। So if that is the case, persuading is your answer. Deride का मतलब क्या है? Criticize करना। तो criticize नहीं कर रहा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को वो assess कर रहा है, ठीक है। असेस करने के बाद उसका प्रॉपर सोल्यूशन दे रहा है। अगर ये डिराइड का मतलब होता है क्रिटिसाइज, अगर ये क्रिटिसाइज कर रहा होता तो इतना सा कहता दैट ही डजंट एग्री विद द वे गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग, एंड उस केस में फिर क्रिटिसिज्म आ जाता। फ्लेगमेटिक का मतलब होता है अनकंसर्न, ठीक है। बट देन इफ यू आर गिविंग अ सोल्यूशन, लेट्स सपोज आपके घर में एक पर्टिकुलर सिचुएशन आ गई है। Now you all want to come out of that situation. Each and every person is giving his or her opinion कि ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। तो अनइमोशनल या फिर अनकंसर्न तो मैं नहीं दिखा सकता ना, because if you are giving a solution, obviously phlegmatic can't be your option. Caustic is again another synonym for deriding, ठीक है। जहां पे लैंग्वेज जो है वो बहुत कड़वाहट भरी है, बट ऐसा नहीं है। So persuading is your answer. स्कोप ऑफ पैसेज, मैंने आपके साथ स्कोप भी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। सो कौन कौन सी चीजें आपको पैसेज में देखने को मिली है, कौन कौन सी चीजें पैसेज में नहीं है। डिस्पैरिट इनकम बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स डेफिनेटली दे रखा है। इनकम डिस्पैरिटी, stark inequities and injustices across gender, caste, regions and more. तो ये आपके साथ डिस्कस हुआ है। Some families surviving on meager means. Now you don't need to move to the passage one more time. You can easily recall कि 125 वाला फिगर हमने पढ़ा था। So that's the benefit you get when you summarize an entire passage in few points. And fewer opportunities for people below the level of median income. Fewer opportunities for people below level of median income. ये डिस्कस ही नहीं किया हुआ पैसेज में। तो क्योंकि वहां पे बस इतना बोल रखा है कि देयर आर injustices, there are inequities at the lowest sections of society, but then उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा मैं कह नहीं सकता। So this particular thing is out of scope. I hope आपको ये समझ में आया। आज का जो हमारा ये सेशन है वो यहीं तक। इनफैक्ट मेरे पास कुछ डिमांड आई है स्टूडेंट से कि हम सीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस या फिर ऐसे कुछ आर्टिकल्स लें, एंड सीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स बनाएं। सो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक आर्टिकल लेने वाला हूं। इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग इंग्लिश, मैं वहां पे सीआर के कुछ पॉइंट्स उठाऊंगा, एंड दे माइट बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो आज का हमारा ये सेशन यही तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया
please hit the like button and subscribe to our channel for more such videos. I thank you all for your time. You all have a wonderful day.